मैं अगर सिविल सर्विसेज में नहीं होती तो मैं ओबियसली एक ट्रेन डांसर बनती। कि एक बिहारी सब पे भारी। यहाँ पे एक कहावत है कि किसान अपनी जमीन भी बेच करके अपने बेटे को आईएएस बनाने के लिए पढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना क्रेज होगा सिविल सर्विसेज। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करिए, मतलब आप लोग उनके सपोर्टिंग पिलर्स बन के रहिए। तो कभी भी किसी टैक्स पेयर को अगर परेशानी आई है तो ये भी है कि जीएसटी काउंसिल की हर मीटिंग में उस परेशानी को दूर करते हुए उसको और ज़्यादा इजी बनाया जाए। मैं सबसे ज़्यादा ये वर्ड लोकसभा या पार्लियामेंट सेशन सुनती हूँ ना, तो उसमें जब स्पीकर बोलते हैं कि बैठ जाइए गरिमा मेंटेन कीजिए आप लोग। आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मुझे, और साइंस के लायक मैं खुद को समझती नहीं थी। तो अगर आपको लगता है कि आप एक रॉन्ग जर्नी पे, एक रॉन्ग पाथ पे चल चुके हैं और उससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे आप एक स्टॉप गेट लगाइए और एक दूसरी जर्नी स्टार्ट कीजिए। सेटिस्फैक्शन आई हैड दैट टाइम कि मैंने अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा किया। तो क्लास में भी क्योंकि मेरा कभी मन नहीं लगता था, अगर रैंडमली टीचर ने बोला कि गरिमा क्या कर रहे हो, मैं बादल देख रही हूँ। Mystic Chord Studios welcomes Garima Chaudhary. Garima, from her roots in Bihar to her role as the Assistant Commissioner of the State Tax under the Commercial Tax Department of Bihar, Garima's journey is a testament to the power of determination and passion. Garima's story is sure to inspire and motivate. Growing up, Garima was surrounded by a supportive and loving family who instilled in her the values of hard work and perseverance. Their encouragement played a crucial role in shaping her into the accomplished professional she is today. In this brand new episode of Mystic Talks with Mystic Chords, Garima shares her heartfelt stories about her childhood, the lessons she learned from her family, and how their unwavering support motivated her to reach new heights. Garima also delves into her decision-making process, offering valuable insights into how she navigates complex challenges and makes critical decisions in her professional life. Her ability to balance logic with intuition has been key to her success, and she generously shares tips and strategies that have worked for her. But Garima's story isn't about her professional achievements. She also emphasizes the importance of happiness and finding joy in everyday life. Her passion for dancing, especially Bharatanatyam, is a perfect example of how she maintains a positive outlook and stays energized. If she wasn't an assistant commissioner, she would have likely pursued a career as a Bharatanatyam dancer, a testament to her deep love for the art form. We'll explore how dancing and other hobbies bringing joy and balance to her life, helping her stay grounded and fulfilled. Join us as we explore Garima's journey from her early years in Bihar to her current role, making significant contributions to the state's tax administration. We will discuss her inspirations, the challenges she overcame, and her vision for motivating the upcoming generations. Watch this episode till the end to see how Garima's story blends professional excellence with personal happiness. Coming to you, Ajinkya Ambatwar, hosting Garima Chaudhary, only on Mystic Talks with Mystic Chord. तो गरिमा जी, शुरू करते हैं आपके नाम से। मुझे आपका नाम काफी यूनिक लगा, गरिमा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कैन यू एनलाइटन अस? हाँ, गरिमा का मतलब होता है ग्लोरी। ग्लोरी इज अ काइंड ऑफ वेरी सीरियस वर्ड। किसी भी चीज की अगर ग्रेविटी दिखानी है, इम्पोर्टेंस दिखाना है, देन यू यूज द वर्ड गरिमा, मेंटेन करिए। मैं सबसे ज़्यादा ये वर्ड लोकसभा या पार्लियामेंट सेशन सुनती हूँ ना, तो उसमें जब स्पीकर बोलते हैं कि बैठ जाइए गरिमा मेंटेन कीजिए आप लोग। Yes, indeed. But unlike the seriousness of that word, you look to be a very calm, very happy going and very full of life personality. तो इसके बारे में कुछ हमें बता पाएंगी? Like, how does this personality coming to being in Miss Garima? इसका रीज़न है मेरी फैमिली, मेरी अपब्रिंगिंग, बेसिकली मेरे फ्रेंड्स।
मैं जहाँ पे रही अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे कभी भी उन लोगों ने कंट्रोल नहीं किया। जस्ट जैसी मैं हूँ वैसे ही मुझे लोग एक्सेप्ट करते चले गए, तो मेरे अंदर भी अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। सो दैट इज द रीजन दैट आई एम इन दिस वे। Oh, that's a very good lesson that you are telling us here कि let people live the way they want, Yes. right? तो मैं भी एक I am a very strong advocate of this thought कि everyone has a thought, everyone has their liberty of how they want to live, and अगर उस तरीके से हमें upbring किया जाए जैसे आपके केस में हुआ, तो it leads to a very very good life जो अभी आप जी पा रही है। I believe that, so that's a very good thing that you are mentioning here. एक हमें let us start with your life journey. As I see, like I must guess that there are multiple stages in your life that brought you to here the way you are at this position. So let us start कि अपनी early childhood days में how were you? How was Garima as a child? As a child really I was very childish. मैं बहुत ही innocent child हुआ करती थी जब मैं छोटी थी, और स्कूल टाइम पे भी मेरा वही अप्रोच था, ऑल ड्यू टू माय मदर एंड फादर, क्योंकि कभी उन्होंने मुझे, जैसे मैंने बताया, कभी कंट्रोल नहीं किया। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ एक सेटअप होता है, एक डिसिप्लिन होता है, टीचर्स चाहते हैं कि वो जैसे चाह रहे आप वैसे बिहेव करो, तो मैं वैसी बिल्कुल नहीं थी। एक बात तो मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई के अलावा मतलब जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं स्कूल में, डांस है, प्ले है, उन सब में मैं बहुत एक्टिव रहती थी, या खेलने कूदने में, नॉट लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब नॉर्मल खेलना कूदना, जो भी रिसेस में वो सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो should we call you like the backbencher of the class? Yes, I was. I'm a proud backbencher. Oh yeah, backbenchers rule. I was also one of them. मतलब मैं ऐसी थी कि हमारे स्कूल में क्लास मॉनिटर को एक ड्यूटी मिली होती थी कि ब्लैक बोर्ड पे ना जो बच्चे क्लास में सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं ना, उनका नाम साइड में एक बोर्ड पे लिखे रहो। मतलब मेरा रिकॉर्ड है कि साल भर मेरा नाम जो है ना वहाँ टॉप पे रहता ही रहता था। ओके, तो हल्ला मचाने में मतलब आप आगे थी ऐसा मुझे लग रहा है। हल्ला मचाना है, मस्ती करनी है, क्लास कितनी भी सीरियस क्यों नहीं चल रही है, टिफिन निकाल के खाना है, मतलब वो तो था। क्योंकि मुझे सच में कभी टीचर की बात मुझे समझ नहीं आई। तो ऐसा कहता है ना कि स्कूल में दो तरीके के बच्चे होते हैं जो हमेशा याद में रहते हैं टीचर्स के। एक होते हैं काफी टॉपर वाले, मतलब जो टॉप रैंक लिया है, और दूसरे होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा हल्ला मचा है। तो मुझे लग रहा है आप वो सेकंड कैटेगरी वाली सेक्शन में आती होंगी। 100%। इवन अभी भी अगर मेरे स्कूल टीचर्स के सामने मेरा नाम भी बोल दिया जाए तो वो अच्छा गरिमा अच्छे से याद है। इवन जो मेरे क्लास टीचर्स होते थे वो तो मुझे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बहुत शिकायतें मेरी होती थी। कोई ऐसी फनी इवेंट अगर आपको कुछ याद हो आपकी स्कूल टाइम वाला? स्कूल टाइम में बहुत सारी वैसे मस्ती करते वक्त पकड़े गए, कुछ घर पे बताया, पेरेंट्स को वगैरह बुलाया गया, ऐसे कुछ? वो तो आए दिन होता था कि पेरेंट्स को बुलाया जा रहा। जितने भी नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते थे हमारा, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे जो सिस्टर्स का हॉस्टल होता था, जो उनका किचन गार्डन होता था, बेसिकली वो हमारे लिए मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होता था कि हमें उधर नहीं जाना है। लेकिन पता नहीं मुझे मेरे अंदर क्या था कि जितने रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते थे मैं उन सब में जाती थी। तो मुझे उनके कुत्तों ने भी चेज किया, मैं वहाँ घुस के जो भी उनके फ्रूट्स है वो सब मैंने चुरा के खाए। और मतलब क्लास में भी, क्योंकि मेरा कभी मन नहीं लगता था, अगर रैंडमली टीचर ने बोला कि गरिमा क्या कर रहे हो, मैं बादल देख रही हूँ। तो जाओ क्लास से बाहर जाओ। ये सुन के मुझे लग रहा है कि वहां से लेके यहाँ तक जो गरिमा जी में चेंज आया है, इसमें कुछ अनोखे कुछ तो इंसिडेंट हुए होंगे। व्हाट ब्रॉट दिस चेंज? एक्चुअली मैं अगर एक इंसिडेंस के बारे में बोलूं तो टिल क्लास 8 मेरा रैंक मेरे क्लास में
बिल्कुल बीच बीच का आता था, मैं बस पास करना मैनेज कर लेती थी, क्योंकि मैंने बताया मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अटैच थी, अपने फादर से, मदर से। तो एक बार मेरे ही किसी रिलेटिव ने मेरी ट्यूटर के सामने मेरी बहुत बुराई कर रहे थे, पढ़ती नहीं है, ध्यान नहीं देती है, बहुत कंप्लेन आती है, और उसका कारण मैं नहीं हूँ, मतलब द रीजन इज माय फादर, कि वो मुझ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो मुझे कंट्रोल करें तो मैं बहुत अच्छा करूंगी या मैं पढ़ सकती हूँ इन दैट वे। लेकिन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा टच कर गई कि मैं अगर नहीं पढ़ रही हूँ, उसका रीजन आप मुझे करते, मुझे ब्लेम करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसका रीजन अगर मेरे फादर को कोई ब्लेम करे कि इसके फादर के लाड प्यार में ये बिगड़ गई है, नहीं पढ़ती है, तो वो मुझे बहुत टच कर गया। तो मुझे याद है कि उसके बाद उसी दिन से, इवन उस मोमेंट से मेरे अंदर ऐसा चेंज आया कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो जो मैं फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस होते थे या केमिस्ट्री जिससे मैं भागती थी कि मुझे तो नहीं पढ़ना, तो मैं सब कुछ सेल्फ स्टडी शुरू किया, क्योंकि मैं कभी क्लास में टीचर्स से तो कभी टीचर्स की बात तो मुझे समझ में आती नहीं थी। और उसके बाद मेरा ऐसा मतलब परफॉर्मेंस रहा अपने स्कूल में कि मैं धीरे धीरे क्लास 9, क्लास 10 और फिर बोर्ड एग्जाम पे मैं टॉपर्स की लिस्ट में थी। और इवन मेरा न्यूज़पेपर में इंटरव्यू भी आया। सो फाइनली दैट वाज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन आई हैड दैट टाइम कि मैंने अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा किया। तो वो एक सेटबैक लग गया था मुझे उस टाइम पे, तो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। तो मतलब आई गेस आपके क्लासमेट्स और आपके टीचर सबसे ज्यादा चौंक गए होंगे कि अचानक ये क्या हो गया गरिमा को। हाँ, जो हल्ला मचाने वाली गरिमा सडनली पूरा स्टडीज बन गई, पूरा क्लास में टॉप वगैरह किया। तो ये चेंज मतलब काफी रोमांचक रहा होगा, राइट, अमंग ऑल द टीचर्स एंड योर क्लासमेट्स, योर फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं मतलब पढ़ाई को लेके सीरियस हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर बहुत मेजर चेंज आ चुका था। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तभी भी बहुत एक्टिव रहा करती थी। अब वो मतलब आई बिकेम सिंसियर टुवर्ड्स माय स्टडीज ओके आफ्टर क्लास 8। आई सी। आपने जो भरतनाट्यम की बात कही थी कि आपको भरतनाट्यम में इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट की शुरुआत कब से हुई? मतलब व्हाट ट्रिगर्ड दिस इन यू? एकदम शुरू से, बिल्कुल बचपन से, बिल्कुल जब मैं छोटी हुई थी, आई गेस जब मैं 3-4 साल की रही होंगी, तभी से मुझे लगता है कि मैं माधुरी दीक्षित की ह्यूज फैन थी। कोई भी मतलब कौन नहीं था बॉलीवुड नंबर आए मैं एग्जैक्ट कॉपी करती थी। लेकिन ये है कि जो मैं डांस देखती थी वो मैं कॉपी करती थी, चाहे उस टाइम पे श्रीदेवी हुआ करती थी, माधुरी दीक्षित हुआ करती थी। जब मैं मतलब थोड़ी बड़ी हुई उसके बाद ऐश्वर्या राय का मतलब डांस परफॉर्मेंस, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और वो चीज़ है क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी तो मैं एग्जैक्ट कॉपी भी करती थी, स्कूल में परफॉर्मेंस भी दिया करती थी, टीचर्स भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। मुझे आज भी याद है कि ऐश्वर्या राय का निमोड़ा निमोड़ा डांस मैंने जब स्कूल में अकेले परफॉर्म किया था तो मेरी प्रिंसिपल ने भी मेरी बहुत तारीफ की थी। ओह वाओ वाओ वाओ। लेकिन उस समय का एक माइंडसेट था ना कि मेरे घर में, मैं जॉइंट फैमिली में थी और हम लोग कजन्स 16 कजन्स थे, और सबके माइंड में मोस्टली के था कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जो भी है मतलब कुछ अचीव करेंगे। किसी के दिमाग में नहीं था कि डांसर बनेंगे। तो हमारे पेरेंट्स भी उसी तरह से थे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब ऐसा मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं क्लासिकल डांस सीख पाती, और इस वजह से वो इंटरेस्ट अभी तक मेरे मन में दबा हुआ है कि अभी भी मुझे मौका मिले तो मैं उसकी कुछ क्लासेस लूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ। ओके आई मीन दिस राइट, देयर इज नो टाइम लिमिट कि कहाँ तक आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू लिव टू योर फुलेस्ट, तो यू शुड डेफिनेटली गो अबाउट इट। बहुत बढ़िया। तो गरिमा जी, आपने जैसे बताया कि 10th स्टैंडर्ड तक आते आते जो शैतान गरिमा थी, जो हल्ला मचाने वाली गरिमा, वो धीरे धीरे अब थोड़ा पढ़ाकू स्टडीज गरिमा में कन्वर्ट हो रही थी। तो कभी आपने सोचा था कि आगे जाके आपको ऐसे ही सिविल सर्वेंट बनना है या फिर इतने प्रेस्टिजियस पोस्ट पे आना है?
तो क्या था इसका इंस्पिरेशन, मतलब क्या थी ये मैंने स्टोरी? ये सब कुछ एज एन एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी प्रायर प्लानिंग नहीं थी मेरी लाइफ में। और इट्सेल्फ मैं बोलूँ तो क्लास 10 तक मेरे सामने एक क्लियर गोल नहीं था कि मुझे करियर में क्या करना है। आर्ट्स में लेना नहीं चाहती थी, मतलब कहूँ तो आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मुझे, और साइंस के लायक मैं खुद को समझती नहीं थी। तो बीच में बचा कॉमर्स। मुझे लगा कि ठीक है, मैं आई कॉम कर लूँगी और खेलकूद में हो भी जाएगा और आगे देख लूँगी कोई। कॉमर्स में तो बहुत सारे करियर होते हैं, सीए के बारे में भी सुना था। हालांकि आज मैं मानती हूँ सीए का एग्ज़ाम देना बहुत टफ होता है, बट एट दैट स्टेज ऑफ टाइम मुझे था कि मैं कॉमर्स हैंडल कर लूँगी, बाकी साइंस ज़्यादा टफ है और आर्ट्स के टाइप की मैं नहीं हूँ। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं अपने क्लास में स्कूल में टॉपर्स के लिस्ट में आई तो मुझे स्कूल से कॉल आया कि आप लोग को स्कूल बुलाया गया है। और मतलब बहुत सरप्राइजिंग था कि वहाँ पे न्यूज़पेपर से लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या पूछेंगे। तो एक रैंडम क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा कि व्हाट यू वांट टू बी, तो लाइक एनी 90s किड मैंने भी बोल दिया आई वांट टू बी अ डॉक्टर। जबकि मैं सच बताऊँ तो डॉक्टर तो मुझे 1% भी नहीं बनना था। मुंह से निकल गया बस। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ। और मैं समझती हूँ कि अब मुझे मतलब फ़िलहाल अब लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। रैंडम मैंने अपने आप को बोल दिया कि आई वांट टू बी डॉक्टर। बहुत मैं बोल देती कि हाँ मुझे डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैं एक ट्रेन डांसर बनना चाहती हूँ। अगर मेरा माइंड इतना उस समय क्लियर होता अपने गोल्स को लेके या अपने हैप्पीनेस को लेके, मैं एक्सप्लोर कर पाती कि मैं किस चीज़ में खुश होती हूँ। अब मैं जब घर आई, अब मैं अपने पेरेंट्स को समझा रही हूँ दूसरे दिन, मतलब पूरे नेबरहुड में, पूरे रिलेशन में पूरा हल्ला है, अरे मतलब मेरे घर का नाम गोलू है कि गोलू तो टॉप की है, वाह क्या उसको तो डॉक्टर बनना है। मैं पूरी फेमस हो चुकी हूँ अपनी फैमिली में और हर जगह। और अब मैं समझा रही हूँ घर पे, मतलब लोग मेरी काउंसलिंग कर रहे हैं और मैं लोगों की काउंसलिंग कर रही हूँ कि नहीं नहीं हमको बनना नहीं है, मुझे कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना है। वो तो उसने पूछा तो मैंने बोल दिया कि मुझे डॉक्टर बनना, मुझे बनना थोड़े डॉक्टर। लेकिन मेरी लग चुकी थी। वही जो मेरे ट्यूटर जो अब तक कंप्लेन करते थे कि पढ़ती नहीं है, उनको अचानक पता नहीं मेरे अंदर क्या मतलब एक ब्रिलियंट दिखने लगा एक बच्चा कि नहीं मुझे तो पता है, मुझे तो शुरू से पता था कि ये बिल्कुल बहुत टैलेंटेड है। मेरी मम्मी नहीं तुमको नहीं पता है, हमको पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो मतलब पूरी लग गया था कि अब इसको डॉक्टर ही बनाना है, इसको डॉक्टर करेंगे, सब लोग मान चुके थे। अब इसको बायोलॉजी इसको पकड़ा दो, अब ये बस डॉक्टर बनेगी। तो कॉमर्स का जो आपका सोच थी कि करेंगे, तो उसका क्या हुआ फिर आगे? वो समय लोगों ने करने नहीं दिया। और मैं कहती हूँ ना कि दुनिया गोल है, एक्चुअली गोल है। अभी मैं जिसमें हूँ बिहार फाइनेंस सर्विसेज में, एक्चुअली मैं अब लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखती हूँ, ट्रायल बैलेंसेस देखती हूँ। मतलब जहाँ पे आपको एक्चुअली मैं वही काम आपको कर रही इंटरेस्ट हूँ। था, जहाँ आगे वापस। हाँ, मैं घूम फिर करके आ तो गई क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, तो ओबियसली मुझे अकाउंट्स और ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ बन चुकी थी मेरे घर में शुरू से सब कुछ देखते हुए, तो इंटरेस्ट था। अल्टीमेटली मैं वहीं आ गई। तो मैंने वही सोचा कि एक बायोलॉजी की वजह से बहुत लंबी जर्नी मैंने गोल 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 घूमी है, जिसकी मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो अब जब आप वापस इस कॉमर्स फील्ड में आ गई, फाइनेंस फील्ड में आ गई, तो आपको लगता है कि जो आपने शुरू में सोचा था वो कहीं ना कहीं आपने यहाँ के अचीव कर ही लिया है? भले ही उसमें कुछ अलग पाथ लेना पड़ा, पर आके आप सेटल हो गई जहाँ जिस फील्ड में आपको आना था। हाँ, करेंटली आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ माई जॉब। गरिमा जी, एक बात बताइएगा कि आपने सोचा था कि कॉमर्स करना है, फिर आप पे डॉक्टर की का बोझ चढ़ गया, फिर वहां से क्या आपने एक्चुअली एमबीबीएस में गई या फिर वहां भी कुछ हो गया, लाइफ में अलग ट्विस्ट आ गए? नहीं, मैं एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में, तो मैं वहाँ से फिर मेडिकल के सेक्टर में तो मैं आगे नहीं बढ़ी। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर्स किया बायो इन्फॉर्मेटिक्स में।
और मैंने बहुत मेहनत भी की ऑनेस्टली, क्योंकि अब ये एक मैं अपने लाइफ के फेज में थी जहाँ मैं अपनी जिस फील्ड में मैं आ गई थी वहाँ मैं ऑनेस्टली अब काम करना चाह रही थी। तो ग्रेजुएशन में भी मैं काफ़ी अच्छा, मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं वहाँ पे भी टॉप किया था, अपने कॉलेज में भी टॉप किया, बॉटनी लिया मैंने। फिर मैंने मास्टर्स में बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऑप्ट किया और तब मैंने सोचा कि अब मैं मतलब साइंटिस्ट के फील्ड में जाती हूँ। ओके, ये तो मतलब काफी बड़ा स्विच हो गया पूरा। और ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश भी की, वहाँ पे मैं पढ़ाई मैंने अच्छी की, ऐसा नहीं, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, लेकिन कुछ रियलिटीज़ मैंने देखा कि इंडिया में बहुत अच्छा रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी उस समय थी नहीं। तो मेरे कोऑर्डिनेटर्स जो भी कॉलेज में थे या सीनियर्स, उन लोगों से कंसल्ट करके ऐसा लगा कि यहाँ पे इतना जो रिसर्च में आप लोग एनर्जी लगाओगे, टाइम लगाओगे, इससे अच्छा है कि आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जाओ, एक लाइफ इजी होगी। तो मेरे अंदर एक भूत आया कि आई एम द बेस्ट, ओके। तो मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगी तो मैं बेस्ट करूंगी। तो वही हाँ। जो एक होता है कि यूपीएससी किसी के बचपन का सपना होता है, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट क्योंकि मैं अब इस पाथ पे नहीं चल रही हूँ, तो अब मुझे किसी नेक्स्ट पाथ पे चलना है, तो एक रैंडम डिसीजन कि चलो अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ, अब मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। और वहाँ जाके मुझे बाद में मतलब आफ्टर 2 years मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में एक दूसरी बड़ी गलती कर दी है। मतलब पहली गलती थी बायोलॉजी नहीं लेना चाहिए था, दूसरी गलती थी कि मुझे यूपीएससी के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत टफ एग्ज़ाम है। मतलब जो लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, आप उनकी जर्नी सुनो या उनकी बातें सुनो तो बहुत वो मोटिवेट करेंगे, हमने ऐसे गाइड किया, हमने ऐसे किया, हमने ये किया और हम यहाँ अचीव कर दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस जर्नी में जो देखा कि ये एग्ज़ाम एक तो बहुत टफ है और इसमें फेजेस हैं, और ऐसा नहीं है कि आप एक फेज क्रॉस कर जाओ तो बस आप नेक्स्ट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद आप फर्स्ट स्टेज क्रॉस करो, सेकेंड स्टेज क्रॉस करो, कई बार लोग फर्स्ट स्टेज से वापस आते हैं, कई बार सेकेंड स्टेज से वापस आते हैं, कभी थर्ड से भी वापस आते हैं, तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, जो मैंने भी झेला। तो इस पूरे फेज में मैंने देखा कि बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत ही डायलेमा मेरे अंदर आ चुका था। और क्योंकि मैंने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स से बात नहीं करती थी, मैं किसी फैमिली गैदरिंग को अटेंड नहीं करती थी, मैंने अपने आप को एक रूम में पैक कर लिया था कि मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे बहुत मेहनत करना है। और इन बिटवीन जब मैंने फर्स्ट टाइम पीटी निकाला तो तब मेरे पेरेंट्स या मेरी सिस्टर भी कह रही है कि अरे हमें तो पता था कि तुम तो बिल्कुल आईएएस बनने के लिए मतलब वो पूरा 1 मिनट में होता है ना, वक्त तो बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं सोच रही हूँ मुझे आज तक पता नहीं था कि मैं आईएएस मटेरियल हूँ। होता है, ये होता है, मतलब आप एक फेज पास करो, अगली बार में दूसरा फेज भी मैंने क्रॉस किया तो और लगता है कि हाँ मैं तो इसके लिए बनी हूँ। आप उतना ज़्यादा अपनी एनर्जी या अपने आप को उसमें झोंकते हैं, ठीक है। तो वो जो मैंने फेज देखा तो मैंने रियलाइज़ किया नहीं, लाइफ को इतना टफ करके जीने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसका जो ड्रीम है ना उसको ही वो चेज करना चाहिए। ऐसे रैंडम कि आई एम द बेस्ट, तो बस मेरे लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं उसकी मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ का बिल्कुल खिचड़ी बना लेना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं, अगर मेरा इस पॉडकास्ट कोई मतलब सिविल सर्विस के कोई एस्पिरेंट है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले देख लो, तुम्हारी रियल हैप्पीनेस अगर इसमें लाई करती है कि आईएएस बनूंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा तो प्लीज़ करो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं बनूंगा तो सोसाइटी बड़ी खुश होगी तो प्लीज़ मत करो, तो बहुत लग जाएगी बेकार। खुद की लाइफ है, खुद की तरह जियो, सोसाइटी के प्रेशर में क्यों आना। हाँ सही बात है, सही बात है। तो अब जब मैं, वही है कि मैं अपनी लाइफ में जब नहीं अचीव कर पा रही थी यूपीएससी, तो मुझे एक डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूँगी, अब तो मेरे हाथ से समय भी निकल जा रहा है। तो तब मैंने अपने दिल की सुनी, फर्स्ट टाइम मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने देखा कि मैं कहीं और सरवाइव नहीं कर पाऊँगी,
मुझे एक ना है कि मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं अब एक टीचर बन सकती हूँ, वो मैंने अपने खुद से ओह। डिसीजन लिया था। तो ये बहुत अलग अलग प्रोफेशन आपने एक साथ ट्राई कर लिया लग रहा है। ये होता है, ये एक्चुअली कई लोगों की कहानी होगी, सिर्फ मेरी कहानी Correct. नहीं है, ऐसा होता है। जब आप अपनी बचपन में जो एक ड्रीम होता है, अगर आप उसको नहीं चेज कर रहे हैं तो आप बहुत जगह भटकते हैं और आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो जो है सो यही है, हुआ मेरे साथ भी यही हुआ था। लेकिन एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंस है केवी के इंटरव्यू का, कि जब मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने वाली थी तो मैं देख रही थी बाकी कैंडिडेट सारे, ऐसे होता है ना, पूछते कैसा हुआ इंटरव्यू, ना बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। मैं साइंस टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ था, और जब आपको इंटरव्यू में अंदर जाने से पहले फॉर्म देते हैं, उसमें भरना होता है कि वाई यू वांट टू बी अ टीचर। तो लोगों ने लिखा नेशनल बिल्डिंग के लिए और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कि हम टीचर इसलिए बनना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा कोई रीज़न ही नहीं था तब तक। एक होता है ना कि मैं बहुत सैचुरेट हो गई थी और बहुत ऑनेस्ट हो चुकी थी। मैंने वही लिखा है, आई जस्ट लव किड्स सो आई वांट टू बी अ टीचर इन स्कूल, बस दैट इज Okay. ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा कुछ मसाला नहीं मैंने डाला। कुछ लगाया ही नहीं एक्स्ट्रा कि मुझे नेशन बिल्डिंग करनी है, कि मुझे भविष्य बनाना, कुछ नहीं लिखा। मेरी खुशी है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, बात खत्म। तो जैसे ही मैं अंदर गई तो इंटरव्यू बोर्ड, मतलब जनरली मैं सुन रही थी कि बहुत खड़ूस होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। वो इतना हंस रहे थे मेरा वो आंसर पढ़ के, और वो खुश थे मेरे आंसर्स से। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लिटरली मैं ऑल इंडिया 4th रैंक मुझे मिली wow. टीजीटी साइंस टीचर में, और इंटरव्यू में मुझे 60 में 59 मार्क्स मिले थे। That's तो amazing. मैं वो देख के भी मैं बहुत खुश हुई। तो केवी का जो मेरा टीचर का एक्सपीरियंस था वो मतलब लाइफ टाइम मेमोरी है। मैंने बहुत एंजॉय किया बीइंग टीचर बच्चों के साथ। और क्योंकि मैं एक बैक बेंचर थी तो क्लास 9 जो सबसे शरारती माना जाता है, मुझे उसकी क्लास टीचर बनाया गया था, क्योंकि प्रिंसिपल को ऐसा लगता था कि आई एम द वन हु कैन हैंडल देम। तो मैंने बहुत मस्त तरह से उनको हैंडल किया। सारे बच्चे मेरी बात सुनते थे क्योंकि मैं उनकी नस नस से वाकिफ थी, बिकॉज आई वाज द बैक बेंचर। मतलब एक लीडर की जैसे हो गई आप उनकी, कि आप उन्हीं को आप ही समझ सकती है अच्छे से। हाँ, तो वो जितनी भी शरारती क्यों ना हो, मैं सबको कंट्रोल कर लेती थी। और आज भी मतलब मैं उनके टच में, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों से बात करके। तो आपकी कहाँ हुई थी पोस्टिंग केवी, एज ए केवी टीचर? केवी कृष्ण नगर में मैं थी। वो बीएसएफ का स्कूल था। मुझे ईस्ट जोन मिला था। ईस्ट जोन में इट्स कोलकाता से 100 किलोमीटर्स है कृष्णनगर। बहुत अच्छा शांत सा छोटा सा इन बंगाल इटसेल्फ? हाँ, इन वेस्ट बंगाल। ओह, दैट्स ग्रेट। तो फिर अब ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जाके लाइफ में सेटल हो चुकी थी, इंटरनली एज वेल, कि आप बच्चों के साथ है, एंड देन एज अ प्रोफेशन एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ, लेकिन एक कहूँ कि अभी भी मैं वहाँ नहीं पहुँची थी जहाँ मुझे पहुँचना था। तो मीनवाइल मैंने और एग्जाम्स जो दे रखे थे उसके रिजल्ट्स आए। तो मैं पहले बीपीएससी फर्स्ट टाइम जब मैंने क्वालिफाई किया तो मैं एजुकेशन सर्विसेज में गई थी। वहाँ मुझे प्रोग्राम ऑफिसर की अपॉइंटमेंट मिली थी। वो जॉब मैं कर रही थी बट मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं बिहार फाइनेंस सर्विसेज मिला तो मैं यहाँ आई। और वही जो कहते हैं ना, दुनिया गोल है, जो मैं कॉमर्स वहाँ लेना चाहती थी, एट लास्ट मैं यहाँ अब उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंसेस बहुत बढ़िया, यही डील करती हूँ। डेस्टिनी लिखी जा चुकी होती है पहले ही, अगर पूरे दिल से करो तो आखिर में वही पहुंचते हैं जहाँ पहुंचना होता है। पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहीं और, मतलब करियर वाइज तो कहीं और ट्राई नहीं किया। हो गया मेरा कि चलो मैं जहाँ आना चाहती थी मैं वहां तक पहुंच चुकी हूँ। तो इन फाइनेंस डोमेन में आप एज अ सिविल सर्वेंट, आपको कितने साल हुए अभी इस जॉब में? 5 years कंप्लीट हो गए मेरे यहाँ पे। 5 years कंप्लीट। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5 year एनिवर्सरी आपकी हो गई। तो एज अ सिविल सर्वेंट एज वेल एज बीइंग इन फाइनेंस, नाउ यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल एज वेल एज लुक एट देयर अकाउंट्स प्रॉपर्ली।
तो व्हाट यू थिंक इज अ मोर चैलेंजिंग वर्क, कि इंटरैक्टिंग विद पीपल, गेटिंग टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, या फिर लुकिंग एट अ ह्यूज लिस्ट ऑफ फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स and analyzing them? So what do you think is more challenging? So this is I'm asking as a perspective of you as a commissioner, assistant commissioner. तो जो भी हमारे दर्शकों में कोई सिविल सर्विस एस्पिरेंट है जिनको फाइनेंस में आना है, तो उनके लिए काफी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा जानना कि हाउ द लाइफ इज गोना बी. फिनेंस सर्विसेज बहुत ही पीसफुल जॉब होती है और यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि हम लोग एक्चुअली बीइंग जीएसटी ऑफिसर, मुझे जो भी है आज के समय में सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हम लोग करते नहीं हैं. वो लोग भी अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, हम लोग भी जो है उसमें डिस्क्रिपेंसीज है ऑनलाइन ही चेक करते हैं. कुछ केसेस हुए तो हियरिंग हुई तो बहुत ही स्मूथली काम चलता है. मुझे ऐसा कभी ये जॉब कभी मुझे चैलेंजिंग नहीं लगी उस तरह से कि मैं ओके, इसको लाइक एज अ फिजिकली चैलेंजिंग या फिर मेंटली एग्जॉस्ट करने वाली जॉब. प्रेशर आता है, मतलब टारगेट्स होते हैं, प्रेशर आता है, लेकिन एक होता है कि अगर आप अपनी जॉब इंजॉय कर रहे हो तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी. बिल्कुल पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट्स भी दो कैटेगरी के होते हैं. एक होते हैं जो बहुत मतलब जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनको पूरा एक कहते हैं ना लाव लश्कर के साथ ऑफिसर वाला एटीट्यूड. तो Okay. मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं खुद भी बहुत पीसफुल टाइप की हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है फाइनेंस सर्विसेज के अंदर. ओके, आई सी. तो गरिमा जी, आपकी एक बातों से मुझे एक बात काफी इंटरेस्टिंग लगी और इस पे बारे में तो सोचने लगा कि एज अ सिविल सर्वेंट सर्विस एस्पिरेंट, राइट, उसकी जो एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है, जैसे काफी शोज भी आए हैं रिसेंटली, आपने अगर ओटीटी पे देखोगे एस्पिरेंट्स के बारे में, हाँ. तो एक लाइफ काफी दिक्कतों से भरी होती है. लाइक यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, यू हैव टू जस्ट पुश योरसेल्फ टू द हार्डेस्ट लिमिट्स, एंड देन देयर इज अ फैमिली प्रेशर. फिर आपको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, अगर बार बार इफ यू आर गेटिंग फेलियर तो यू फील कि कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, यू जस्ट गेट डिप्रेस. तो आई एम श्योर कि लाइक मेनी अदर एस्पिरेंट्स आपने भी ये चीजें फेस की होगी लाइफ में. तो आई वुड जस्ट लाइक टू गेट एन इनसाइट कि हाउ डू यू डील विद दिस, हाउ शुड वन डील विद सच सिचुएशंस. अजिंक्या, मैं एक मूवी मैंने देखी थी डियर जिंदगी. उसमें शाहरुख खान है, आलिया भट्ट है, हो सकता है आपने देखी हो. मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी थी. उसमें शाहरुख खान उसको गाइड कर रहे होते हैं, तो एक बात उस मूवी में उन्होंने कही थी कि हम हमेशा अपने लिए मुश्किल रास्ते ही क्यों चुने. मतलब ये हमें सोचना चाहिए ना, हम आसान रास्ता भी तो चुन सकते हैं जिसमें हम खुश रह सकें. मतलब ज़रूरी तो नहीं कि हम अपनी लाइफ में खुद को टॉर्चर ही करें. अगर जिस चीज़ को करने में हमें खुशी नहीं मिल रही है उसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो अब मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो करिए. लेकिन अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप स्विच कर जाइए. क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है कि आप अगर इस पे चलते चले गए और लास्ट तक जब आप पहुंचते हैं तो आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं. जैसा मैंने फील किया था कि एक सोशल लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी होती है. धीरे धीरे अगर बार अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे चला जाता है. कुछ ऐसे मतलब हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि किसी कैंडिडेट ने फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लिया. जबकि ये तो मतलब सिविल सर्विस के नहीं, मैं कोटा में कुछ बच्चों का भी सुनती हूँ, बहुत कम एज के हैं, क्लास 10 पास करके गए हैं या क्लास 12 पास करके गए हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे तैयारी का कि फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर रहे हैं, जबकि उनकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है. तो ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज़रूरत है, सोसाइटी को भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि इतना प्रेशर किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए. मतलब
सुसाइड करना इज़ अ वेरी बिग थिंग, और हम लोगों को इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आखिर हर कोई यही क्यों चाहता है कि उसको बेस्ट ही मिले, और किसने किसी चीज़ को बेस्ट बना दिया है? बेस्ट का पैरामीटर सेट करने वाला है कौन? मेरे लिए क्या बेस्ट है वो मैं डिसाइड करूं। तो Correct. ये चीज़ होनी चाहिए ना कि बेस्ट का पैरामीटर आप सोसाइटी को डिसाइड करने मत दीजिए। आपके लिए क्या बेस्ट है आप खुद डिसाइड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक रॉन्ग जर्नी पे, एक रॉन्ग पाथ पे चल चुके हैं और उससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे आप एक स्टॉप गेट लगाइए और एक दूसरी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो ये मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे व्यूअर्स में पेरेंट्स अगर वो देख रहे हैं, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करिए। मतलब आप लोग उनके सपोर्टिंग पिलर्स बन के रहिए, सपोर्ट करिए। अगर बच्चा गिर गया, हार गया, नहीं अचीव कर पाया, ठीक है, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। मैंने खुद एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ में कि बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो बच्चों और उनके पेरेंट्स, इफ यू आर वाचिंग दिस, डू टेक नोट्स व्हाट इज मिस गरिमा सेइंग, कि लाइफ है बच्चों हाँ, की, जीने बिल्कुल। दीजिए उनको, अपने हिसाब से करने दीजिए। हर किसी को डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनाते रहेंगे या फिर सिविल सर्वेंट बनाते रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज बेहतर नहीं होती, कोई एक चीज कम नहीं होती। वो बच्चे के मन पे है, उसको जहां मन लगे करने दीजिए। क्यों गरिमा जी? तो गरिमा जी, आप अभी फाइनेंस डोमेन में है, सिविल सर्वेंट है, एज अ डिप्यूटी कमिश्नर यू वर्क इन जीएसटी डिपार्टमेंट। तो आई एम प्रिटी श्योर यू हैव टू डील विद सो मेनी थिंग्स कि लाइक एक तरफ देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कमिंग अप फ्रॉम पीपल, दूसरी तरफ देर इज लॉट ऑफ वर्क प्रेशर पाइलिंग अप, देर आर सो मेनी टारगेट्स यू हैव टू अचीव, and there are so many files you need to take care of, right? And there is a department, whole department जो आपको हैंडल करना पड़ता है। तो आई वंडर कि गरिमा, इज शी अ टाइम ओरिएंटेड पर्सन कि इतने टाइम काम करना ही है, और इज शी अ टारगेट ओरिएंटेड पर्सन कि कुछ भी हो जाए ये टारगेट खत्म करना है, भले उसके लिए मुझे 10 घंटे क्यों ना काम करना पड़े? हाउ डू यू हैंडल दीज थिंग्स इन योर वर्क लाइफ? ये आंसर जैसे ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जो भी टास्क हमारे सामने वर्क लाइफ में आता है, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर बिल्कुल टाइम ओरिएंटेड हो जाएंगे तो हो सकता है कि कई बार आपको काम की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं अपना एक टाइम लेती हूँ और मैं अपने काम की क्वालिटी को हमेशा अपना बेस्ट दे करके ही करती हूँ। तो वो मेरे साथ हमेशा एक चीज़ है, जिसके लिए मुझे कुछ टाइम बाय करना पड़े तो मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेती हूँ। मतलब मोस्टली ऐसा नहीं होता है, बट समटाइम्स ये है कि काम की क्वालिटी ऐसी हो कि फिर उसको दोबारा से ना करना पड़े। मेरा काम अगर है तो वो एक बार में अप्रूव हो जाए। मेरा हमेशा अप्रोच ये रहता है। तो इट्स अ टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच, आई वुड से, कि जो कर रहे हैं पूरे मन लगा के करो। हाँ, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे काम में कोई ऐसा लूप होल छूट जाए। मतलब तो मैं अपने काम में अपना 100% दे करके उसको एज अ परफेक्शन हमेशा फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। कई बार मैं थोड़ी डिले भी होती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, क्वालिटी हमेशा मेंटेन करती हूँ। ओके। तो गरिमा जी, आप अभी बिहार में पोस्टेड है, राइट? तो जैसे एक कहावत है ना कि एक बिहारी सब पे भारी, कि ऐसे बोलते हैं कि बिहार का जो वर्किंग कल्चर है, बिहार का ओवरऑल सोसाइटी है, उसका वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट अदर स्टेट्स, राइट? आई मीन देयर आर डिफरेंट इश्यूज, there are different developments over there, the culture over there is a little different from other states. So how do you think that has affected your work, and how do you see that going forward? आप कैसे इन चीजों के साथ इंटरेक्ट करेंगी? हाँ, अगर मैं पर्टिकुलरली बिहार के बारे में बात करें तो ये अभी मतलब डेवलपिंग स्टेट है अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में। मतलब और यहाँ पे बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे पहले का जो बिहार हम लोग सुनते थे, अगर उसे कंपेयर करें तो आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेटर जगह पे है, और यहाँ के लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, अपने आप में कल्चरली काफ़ी एनरिच्ड होते हैं। जो भी फेस्टिवल्स है, कल्चर है, उसको अपना ही इनका एक वे, और अच्छा लगता है बिहार में। ऐसा नहीं है कि हमें काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है।
इनके मन में सिविल सर्वेंट के लिए रिस्पेक्ट भी होता है, ये आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छे काम को तो वैसे भी हर जगह पहचान मिलती है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको हर जगह लोग अप्रिशिएट करेंगे। और हमारा भी काम करने के दौरान फोकस यही होता है कि हम किसी को परेशान ना करें। मतलब किसी का भी काम अगर रुक रहा है, जैसे मैं फाइनेंस में हूँ, जीएसटी का है, तो अगर हम लोग उसको ईज कर दें उनके लिए तो अच्छा रहेगा। बिहार में ओवरऑल क्योंकि मैं पली बड़ी रांची में हूँ, झारखंड जो फॉर्मर बिहार का पार्ट था, तो मैं काफी रिलेट भी कर पाती हूँ यहाँ के कल्चर से। तो मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। वैसा कोई बहुत ज्यादा हम लोग अल्ट्रा प्रोफेशनलिज्म में नहीं चलते, हमारे यहाँ पे ह्यूमैनिटी का भी पार्ट होता है। हम लोग हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स जो है, जूनियर्स का भी हम ख्याल रखते हैं। सीनियर्स हमसे हमेशा एक फैमिली की तरह बात करते हैं, तो मुझे ये कल्चर अच्छा लगता है। वाओ, दैट इज ब्रिलियंट। आपने जो एक बात अभी कही कि द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट एज अ सिविल सर्वेंट, आई फील कि इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग इफेक्ट होगा। हाँ। कि आई मीन बिहार जैसे स्टेट में द स्टेट दैट गिव्स द मोस्ट नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, करेक्ट। तो ऐसे जगह पे हाउ डू यू सी कि कितनी एज अ सिविल सर्वेंट को एक सोसाइटी में कितना औहदा देते हैं, कितना रिस्पेक्ट मिलता है? हाउ डू यू फील कि आपको कैसे ट्रीट किया जाता है इन सोसाइटी एज अ सिविल सर्वेंट? बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल वे में लोग लेते हैं, मतलब अच्छा लगता है। बिहार में एक्चुअली शुरू से ही लोगों के अंदर सरकारी नौकरी को लेकर के क्रेज रहा है, तो ये उस चीज को क्योंकि अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे एक कहावत है कि किसान अपनी जमीन भी बेच करके अपने बेटे को आईएएस बनाने के लिए पढ़ाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना क्रेज होगा सिविल सर्विसेज का। तो यहाँ पे एक तो काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि डेवलपमेंट की जरूरत है यहाँ पे। और बात वही है कि अच्छा काम हर जगह रिकॉग्नाइज, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको लोग हमेशा रिस्पेक्ट देंगे, आप कहीं भी रहें। दैट इज करेक्ट, इंडीड दैट इज करेक्ट। अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है रिलेटेड टू जीएसटी पर्टिकुलरली। जीएसटी बेसिकली बहुत नया टॉपिक है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years नाउ जीएसटी काउंसिल, 7-8 year जीएसटी काउंसिल 7 years हो चुके हैं। एंड इट्स 7 year 2017 से, एंड इट्स एवर ग्रोइंग फील्ड। आई मीन उसमें हर बार नए चेंजेस आते हैं, द परसेंटेज जीएसटी के चेंजेस होते रहते हैं, न्यू लॉज आर बीइंग क्रिएटेड, न्यू अमेंडमेंट्स बीइंग पास, राइट। एंड देन उसमें एंटी प्रॉफिटेरिंग का इश्यूज होंगे, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बहुत सारे इश्यूज आते होंगे। तो ये सारे एवर ग्रोइंग फील्ड में एज अ यंग सिविल सर्वेंट, मानो कोई जो एंटर कर रहा है, उसके लिए आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? एक्चुअली जीएसटी आए हुए 7 years हो चुके हैं और ये अपने इवोल्यूशन के स्टेज को लगभग क्रॉस कर चुका है। अब ये काफी मतलब ग्रो भी कर चुका है, लोगों में इसकी समझ भी बन चुकी है। और चीजें क्योंकि ऑनलाइन है तो काफी फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, काम करना इसमें आसान हो गया है। जो भी है जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं वो ऑनलाइन ही फाइल होता है, क्योंकि सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। जस्ट इन क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन सी द रिटर्न्स एंड एवरीथिंग। लेकिन है इसमें भी कुछ लूप होल्स है, जिसमें जो मैं आपने पॉइंट आउट भी किया कि आईटीसी वगैरह का जो रहता है, तो कोई भी आएगा तो आपको ये मान के चलना हमेशा कि रूल क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है। अगर आप हमेशा एक्ट्स एंड रूल्स के तहत काम करेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो बिल्कुल। वो चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक्चुअली उस जगह पे आप हैं, लेकिन रूल यहाँ पे जो जीएसटी को कर रहा है वो जीएसटी का एक्ट कर रहा है। और हमेशा इसमें जो भी कभी भी किसी टैक्स पेयर को अगर परेशानी आई है तो ये भी है कि जीएसटी काउंसिल की हर मीटिंग में उस परेशानी को दूर करते हुए उसको और ज्यादा इजी बनाया जाता है और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है। तो अच्छा okay. तो विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी सारी चीजें इजी हो चुकी है, आई वुड से, राइट। गरिमा जी, आपने बात करते हुए एकदम शुरू में एक बात कही थी कि हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है, राइट। और सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है,
और हम एक दूसरे को देखते कि ये आगे जा रहा है, मैं भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो आपने कहा कि इनिशियली आपने गलती कर दी कि आपने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की थी, राइट? आपको इस फील्ड में ऐसे आने की सोच नहीं थी, पर आप आ गई कुछ ना कुछ करते। तो दैट मेड मी थिंक कि अगर मिस गरिमा यहाँ सिविल सर्वेंट नहीं होती तो व्हाट वुड शी बी राइट नाउ डूइंग इन हर लाइफ? हाँ, मैं अगर सिविल सर्विसेज में नहीं होती तो मैं ओबियसली एक ट्रेन डांसर बनती। ओके। क्योंकि मुझे डांसिंग में शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और इटसेल्फ अभी भी मैं अपना ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाई हूँ। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जल्दी मीन्स लाइक इन 2 to 3 years मैं क्लासिकल डांसिंग का प्रॉपर ट्रेनिंग लूँ और फिर मैं अपने ड्रीम को जरूर अचीव करूँ। ओके, भरतनाट्यम ट्रेनिंग, दैट वुड बी रियली गुड। यस। तो अगर आपने मान लीजिए कि आगे जाके पूरा भरतनाट्यम में फोकस किया, तो विल दैट बी एन अनदर करियर शिफ्ट इन योर चेंज और हाउ विल इट गो? आई रियली डोंट नो। So you are allowing it to let it flow. Yeah, I want to like it's part of my me time. अभी भी मैं जिस तरह का अगर कहूँ वर्क लाइफ और जो मेरा पर्सनल लाइफ है, इसमें जब बैलेंस की बात होती है तो बहुत बार जब मैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना होता है तो आई प्रेफर डांसिंग Okay. एंड लिसनिंग टू दीज म्यूजिक्स। तो मुझे अभी भी वो चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी। भले ही मैं ट्रेन डांसर कब बनूंगी, कब मुझे उसका मौका मिलेगा, लेकिन एक होता है ना कि इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस आपको कहाँ से मिलती है, तो वो मुझे सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट। तो I वो see. तो रहेगा। अब मैं उसमें करियर बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी वो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने बहुत पहले अपने इस पैशन को पहचान लिया होता कि मेरे अंदर है ये टैलेंट, मैं कर सकती हूँ, मुझे करने में अच्छा लगता है, तो मैं वही करती। फिर मैं ये दूसरी चीजें मतलब नहीं करती। तो मतलब जो इनर पीस आता है, जहां से ड्राइव आती है जो बोलते हैं ना, तो लेट्स फोकस ऑन दैट इटसेल्फ शुरू से ही लाइफ में। करेक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग मुझे लगती है कि आजकल प्रेशर के मामले में आके ये प्रेशर वो प्रेशर, हम कुछ वो कर बैठते हैं जो हम नहीं है। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ अस। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि लाइफ के इनिशियल फेज में यू शुड रिफ्लेक्ट कि आपको क्या पसंद है एंड जस्ट फॉलो दैट पाथ। और आप सबसे बड़ी बात है, जब आप वो करेंगे तो आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, इनर खुश पीस रहेंगे। जो आता है। और एक्चुअली अल्टीमेटली लाइफ का गोल ना हमारी लाइफ में मुझे पर्सनली लगता है यही होना चाहिए कि आप खुश है कि नहीं है। ये बहुत बहुत अच्छा आप संदेश आप दे रही है। खुश है कि नहीं। करेक्ट। इनर पीस इज व्हाट दैट मैटर्स द मोस्ट। तो गरिमा जी, मैंने आपके बारे में कहीं पे पढ़ा था कि यू आर इन्वॉल्व इन दिस 2 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। वन वाज फ्लैश लाइट एंड अनदर वाज निर्माण एक्टिविटी। तो ये क्या था? आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू अनप्रिविलेज्ड किड्स, राइट? तो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ और बता पाए, आई थिंक इट वाज वेरी फैसिनेटिंग। Yeah, actually these were 2 different initiatives. Flashlight initiative जब मैं पटना आई थी फर्स्ट टाइम, यहाँ जब मैंने बिहार फाइनेंस सर्विसेज ज्वाइन किया था, तो यहाँ सड़क पे जो गरीब बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, वो बलून्स बेचा करते थे शाम में। तो उन्हीं को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया गया था और धीरे धीरे उन बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब हमने एक बच्चे से शुरू किया था और ग्रेजुअली अभी के समय में उसमें 50 से 60 बच्चे हैं। कुछ बच्चों का एडमिशन भी अच्छे स्कूल्स में करा दिया गया, कहीं कुछ अच्छे बच्चों को जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दिला दी गई। दूसरे और भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस भी हमारे साथ जुड़ते चले गए। तो ये एक सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन रहा था और उसमें कि जनरली बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं, कई सारे कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स भी हैं जो शाम में 1 से 2 घंटा अपना उन बच्चों को पढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव था और ये अभी भी चल रहा है।
हालांकि मैं बच्चों के बाद थोड़ा अब उसमें टाइम कम दे पा रही हूँ, लेकिन इनिशिएटिव चला रहे हैं लोग। इसके फाउंडर है अमन। अगर मैं मौका मिला तो मैं ज़रूर आपकी दर्शकों की भी बात कराने के लिए उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी। बिल्कुल। और एक जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी रांची में, तो वनवासी कल्याण केंद्र के अंदर निर्माण एक उसका विंग स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो वहाँ पे जंगल में रहने वाले आदिवासी बच्चे हैं, जो बिल्कुल ही बेसिक एजुकेशन भी उनको बहुत ही मुश्किल से मिल पाया था, ऐसे बच्चों का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए वो इनिशिएटिव था। और उसमें भी बच्चों को पढ़ाया गया और कुछ बच्चों ने क्वालिफाई भी किया। तो ये कुछ चीज़ें रहीं जो हमने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। ब्यूटीफुल। वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes, and I think you have been or you are still doing those responsibilities very well. So kudos to you, ma'am. बहुत बढ़िया। तो गरिमा जी, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग इवेंट शेयर किया आपकी लाइफ के, और आप अभी की लाइफ शेयर किया, आप कैसी चीजों के साथ डील करते हैं। और इस सारी डिस्कशन में ना आपने काफी वैल्यूएबल लेसन्स हमें और हमारे दर्शकों को दिए हैं। तो इसको रैप अप करते वक्त I have few very interesting and quirky rapid fire questions for you. I want you to answer them as fast as possible without thinking about it in second thought. ठीक है? तो क्या आप इसके लिए रेडी है? I'll try. चलिए, they are very basic, fundamental, easy questions about our daily lives. तो I think it should be a very piece of cake for you. चलिए शुरू करें फिर? Okay. All right. The first question is, for Miss Garima, what's the morning routine? Coffee or tea? No coffee, no tea. What is it? It's lemon honey and hot water. No more. Okay. Living a healthier life, huh? That's very good. That's actually a very good choice. Actually, so health is wealth. Correct. It comes above everything else. Viewers, if you are listening, take a note of this. No coffee, no tea, lemon honey for a successful life. चलिए आगे बढ़ रहे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट बिहार डेलिकेसी? लिट्टी चोखा या सत्तू पराठा? लिट्टी चोखा। वाह, वेरी गुड। थर्ड, घी में डूबी हुई लिट्टी। ओहो हाय, क्या मजा आएगा। अभी सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और अभी का वो सीजन भी वही है, बारिश का मौसम है एक्चुअली। तो हम लोग एक्चुअली ये करते हैं, हमारे ऑफिस के बाहर एक लगाता है बाहर में ही, और उसका चोखा और लिट्टी बहुत फेमस है। इवन उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा। तो हम सुबह कहते हैं तो हमें 3 बजे वो देता है, हमें डिलीवर करता है। अरे उल्टा हो गया, सिविल सर्वेंट को दुकानदार से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है। इतना फेमस है वो। लिट्टी चोखा के लिए बिहार में आपको अच्छा लिट्टी चोखा खाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैं आके बिल्कुल ट्राई करने वाली हूँ अगली बार बिहार आके। बिल्कुल। चलिए आगे वाला देखते हैं। वर्क स्टाइल कैसी है आपकी? ऑर्गेनाइज, केओस या फिर स्ट्रिक्टली प्लान? It all depends. It sometimes if work is like I'm well with the work pressure, then I can manage. Okay. अगर बहुत ज़्यादा है, अचानक से कोई ऐसी मीटिंग हो जाती है जो मतलब जस्ट उसी समय अभी हुआ है, तुरंत रिपोर्ट्स प्रिपेयर करवाने हैं, तो वो केओस वाली भी सिचुएशन आ जाती है। अच्छा, फिर वो केओस थोड़ा आ जाता है। दोनों ही होता रहता है। होता है, भाग दौड़ होती है, एक्स्ट्रा आवर्स हम काम करते हैं, हम वीकेंड्स पे भी काम करते हैं, हम संडे को भी ऑफिस खोलते हैं, तो वो सब कुछ होता है। ओके, आई सी। ठीक है, तो अब ऑफिस पे आते हैं। प्रिफर्ड ऑफिस अटायर बताइए, ट्रेडिशनल साड़ी या फिर फॉर्मल सूट? इन जनरल फॉर्मल सूट। टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद। अच्छा। बहुत बढ़िया। अब आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे ना एक्चुअली सी बीचेस बहुत पसंद है, मतलब क्लीन सी बीचेस। कहीं गई है आप? कोई स्पेसिफिक लोकेशन जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए, कोई सीक्रेट स्पॉट?
सीक्रेट स्पॉट क्या बोलूँ मैं, मतलब जनरली इंडिया में मुझे द्वारका में बहुत अच्छा लगा था। वहाँ का मतलब एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बहुत साफ पानी है। फिर मैं मुंबई महाराष्ट्र के, ऐसे तो गोवा वगैरह गई हूँ, लेकिन ऐसे मैंने सराउंडिंग बीचेस भी वहाँ के एक्सप्लोर किए। जैसे मैं एक बार हरिहरेश्वर गई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो भी मतलब वैसे एक फीलिंग, बहुत अच्छी वाइब्स आई थी वहाँ। हरिहरेश्वर का बीच। मुझे मेरा हाँ Okay. वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप, ऐसा लग रहा है आपको भी काफी ट्रैवलिंग का शौक है, मतलब बाहर घूमने का वगैरह। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को शौक है, तो मैं उनके साथ बहुत जगह हम लोग एक्सप्लोर करते थे। अभी बच्चे होने से पहले की बात है। ओके। मे बी जब बच्चे वापस बड़े हो जाएंगे तो पूरी फैमिली एक साथ कहीं पे हाँ, trip ले तब पाएगी। उनको लेके तब करेक्ट, बिल्कुल। अब बताइएगा आपकी फेवरेट लेजर एक्टिविटी क्या है? listening to my favorite music and dancing obviously. Oh, any particular choice? I mean, recent favorites, any song? मैं ना बिल्कुल कोई फेवरेट सॉन्ग मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। मैं Okay. एक गाना अगर एक दिन सुन लिया तो फिर दूसरी बार उसके ना दूसरे सेकंड मंथ में उसका नंबर आता है। अच्छा। कभी मैं ऐसे 90s के गाने सुनती हूँ, उससे मुझे अपना मतलब नॉस्टैल्जिया टाइप फील होता है बचपन का। कभी मैं Okay. 70s के गाने सुन लेती हूँ, अरे लता वाह। मंगेशकर को भी सुन लेती हूँ। अरे वाह। कभी मैं ये रिसेंट वाले जितने गाने आ रहे हैं अभी के वो भी सुन लेती हूँ। अच्छा, तो हमारी मिस्टिक कॉर्ड्स की जो डायरेक्टर है नेहा हटवार मैम, तो यू नो शी इज अ वेरी गुड सिंगर, शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर। तो आपकी कोई दरख्वास्त होगी उनसे कोई एक गाने की, तो ये अभी बता दीजिए उनके लिए। नेहा तो बहुत अच्छा गाती हैं, उनका तो गाया हुआ हर गाना बहुत ही मेलोडियस होता है, उनकी वॉइस ही इतनी स्वीट है। लेकिन मुझे अगर उनकी आवाज में सुनना होगा तो मैं अमर प्रेम मूवी का गाना है रहना बीती जाए, मैं चाहूंगी कि नेहा प्लीज वो गाना एक बार मेरे लिए गा दो। नेहा मैम, if you're watching this, do take a note. Garima ma'am wants to listen to that song in your voice. We'll sure complete that wish for you, Garima ma'am. रहना बीती जाए शाम ना आए निंदिया ना आए निंदिया ना आए रहना बीती जाए शाम को भूला शाम का वादा शाम को भूला शाम का वादा रे संग दे के जागे राधा निंदिया ना आए निंदिया ना आए रहना बीती जाए शाम ना आए निंदिया ना आए निंदिया ना आए रहना बीती जाए शाम ना आए रहना बीती जाए अब ऐसे out of your work, whenever weekend happens and let's say there are no extra work for you on weekend, तो क्या करती है आप जनरली वीकेंड पे एज अ फन एक्टिविटी?
फन एक्टिविटी में बच्चों के साथ, तभी तो मेरा वीकेंड ऐसे मतलब बच्चों के साथ मैं बहुत खेलती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ। Okay. उनको नहलाते हुए भी बहुत मस्ती करती हूँ, उन्हें घुमाने ले जाती हूँ। ओके। वीकेंड्स मोस्टली अभी किड्स के साथ ही निकलते हैं। हाउ ओल्ड आर योर और किड्स? ऐसे it's only they are only 18 months old. ओह 1.5 year old. Yes. वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आप ऐसे ही कभी उनको घुमाने वगैरह ले जाती होंगी फिर? या बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, फेवरेट बिहार फेस्टिवल? अब ये काफी छठ। ट्रिकी हो सकता है। आप तो बता दिया सीधे, छठ पूजा। छठ, मुझे यहाँ के लोगों के लिए छठ पूजा नहीं होती है, छठ इमोशन होता है। ओ, थोड़ा बताइएगा कोई वी आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद छठ एंड हम लोग बहुत वेट करते हैं कि छठ आया है। तो और how do you वो उसका ऐसा celebrate? नहीं है, हमारे घर पे भी होता है छठ। छठ के फेस्टिवल में ये 3 दिन का, मोस्टली ऐसे कहे तो स्पेसिफिकली 3 दिन का होता है। Okay. लेकिन पूरा मंथ होता है छठ का, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशंस होती हैं, ये बेसिकली छठ की पूजा जो है, इसमें सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। ओके एक शाम का अर्घ होता है, एक सुबह का अर्घ होता है। ओके। लेकिन इसके पहले 2-3 दिन पहले से ही काफी कुछ इसमें होता है। जैसे आप पूरे घर की सफाई करते हैं, तो उसके बाद एक नहा खा का होता है, जिसमें जो भी व्रती हैं, जो उस व्रत को करते हैं, वो लोग उस दिन बिल्कुल सफाई से बना हुआ खाना, मतलब यहाँ हमारे यहाँ तो आप लोग दाल चावल कहते हो, हमारे यहाँ तो दाल भात कहते हैं। ओह, चावल को दाल ओके, भात, कद्दू की सब्जी। और फिर उसके बाद अगले दिन खरना होता है, जिसमें बहुत ही अच्छी गुड़ की खीर बनती है, रोटी बनती है, ओहो। सब्जी वगैरह भी बनती है। अभी आई कांट वेट और- एक्चुअली देन। आई मस्ट विजिट अ छठ पूजा इन बिहार देन। सबसे स्पेशल छठ का ठकुआ होता है। ओके, और वो क्या होता है? वो गेहूं के आटे का बना होता है, एक अच्छी रेसिपी है। उसके अंदर घी डाल के उसका एक सांचा आता है, उसमें ओह। उसको मोल्ड करके डीप फ्राई करते हैं, और वही एक्चुअल प्रसाद होता है जो चढ़ाया जाता है। इवन छठ के बाद दूसरे दिन जब आप ऑफिस जाते हो, या जब हम स्कूल्स में थे, तो स्कूल तो सबके घर पे ही, सबके मुंह पे यही होता है, छठ की प्रसाद है। हालांकि छठ सबके घर पे होगा, लेकिन सब सबको लोग एक सबके दूसरे घर का को प्रसाद प्रसाद दे खाना रहे होता होते है। हैं। हाँ। ओके। और ये क्योंकि इसमें नदी का मतलब नेचर का बहुत रोल है। ये नदी में लोग खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो जितने भी नदी, रिवर्स, पॉन्ड्स जो भी है, सबकी एकदम डीप क्लीनिंग होती है, मतलब ओह। अच्छे से साफ होता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि पब्लिक अपने इंटरेस्ट से जाके साफ करती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि जिसके घर में हो रहा है वो जाके साफ करेगा। तो वो Okay. ऐसा है कि पूरे बिहार, झारखंड, इवन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द यूपी, इसमें वो पूरा ऐसा लगता है कि सभी लोग छठमई हो चुके हैं। मतलब काफी रिलीजियसली और काफी एंथुजियाज्म के साथ ये सेलिब्रेट किया जाता है हाँ, पूरे बिहार बहुत, में और बहुत। आजू बाजू के स्टेट मुझे में। लगता है कि कोई ही बिहारी होगा जो आपको बोलेगा कि छठ के अलावा किसी और फेस्टिवल के बारे में, ओह। सब आपको बोलेंगे छठ फेवरेट है। काफी इंटरेस्टिंग है फिर ये तो। मतलब काफी बड़े स्केल पे होता है सेलिब्रेट ये। बहुत बड़े स्केल पे होता है। अच्छा 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 अच्छा। अब एक सारी गलियों, सारे रोड्स की क्लीनिंग होती है। अच्छा, और ऐसे पूरे लाइटिंग वगैरह भी लगाते हैं? बहुत लाइट्स होता है, म्यूजिक, छठ के गाना तो मैंने नेहा जबकि वो बिहार से नहीं है, बट उन्होंने भी छठ का गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। हाँ, छठ ओके। के लोकगीत होते हैं, और बहुत ही मतलब क्या है, मतलब हिंदी में मैं कहूँ तो कर्ण प्रिय, वो लोग सुनने वाह। में ही मतलब आदमी झूम जाता है। और मतलब गाने ऑल भी फोक बहुत सॉन्ग्स, अच्छे फोक सॉन्ग्स पूरे। फोक सॉन्ग्स। अरे वाह, काफी मतलब एंजॉयमेंट भरा वातावरण रहता होगा फिर उस टाइम पे तो। हाँ, पूरी फैमिली, जैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली सबके बच्चे अगर बाहर है, कोई बॉम्बे है, बैंगलोर है, दिल्ली है, इवन फॉरेन में कहीं और किसी और फेस्टिवल में इकट्ठा हो चाहे ना हो, हाँ। छठ में सब आते हैं। ओह। छठ के समय में आप चेक करना, ट्रेन टिकट्स, ट्रेन फेयर्स एंड फ्लाइट के फेयर्स इतने मतलब शूट बढ़ अप हो जाते होंगे ना? जाते हैं। और ये टिकट सबको उस समय बिहार आना होता है। सब आते हैं। अच्छा अच्छा।
अरे मतलब लग रहा है कि जैसे हर जगह दिवाली दिवाली होती है, उसी स्केल पे बिहार, यूपी, झारखंड एरिया में छठ का सेलिब्रेशन होता होगा। छठ, हाँ हाँ। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो एक अभी आप जो बोल रहे थे कि स्ट्रेस वगैरह भी होता है काम का, तो हाउ डू यू डू स्ट्रेस रिलीफ? व्हाट्स योर फेवरेट गो टू स्ट्रेस रिलीवर? स्ट्रेस रिलीवर, मैं अगर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं थोड़ा काम में एक पॉज लेती हूँ, ओके आराम से बैठती हूँ, थोड़ा विंडो से बाहर, जैसे मैं स्कूल टाइम पे देखती थी, मैं बादल देखती हूँ, बाहर में पेड़ पौधे देखती हूँ, नेचर देखती हूँ, फिर एक अच्छी सी चाय पी लेती हूँ और अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, फिर से काम को देखती हूँ कहाँ मेरा काम फंस रहा था, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत बढ़िया। और कई ऐसी जगह होता है जहाँ पे हमें अपनी बात से किसी को कन्विंस करना है, तो वहां भी मुझे यही फॉर्मूला आता है, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, पॉज लेती हूँ, फिर अपने वर्ड्स को फ्रेम करती हूँ, फिर मैं दोबारा अपनी बात रखती हूँ और फिर चीजें हो जाती हैं। Beautiful, beautiful, beautiful. Before wrapping this, I have two very interesting questions to ask you. So, in your life, who has been or what has been your biggest inspiration that keeps you driving? मैं बोलूँ तो इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स रहे हैं। Oh, beautiful. मैंने अपने फादर को मैंने देखा है कि आज उनकी एज 66 या 67 इयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने कभी लाइफ में रिटायरमेंट नहीं ली, कभी उन्होंने आराम, मतलब उनको अपने काम में ही मजा आता है। ही इज अ बिजनेसमैन और वो कहते हैं कि मैं अगर काम न करूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। Okay. तो वो बहुत मेहनती हैं और So मैंने he's still बचपन से working? देखा है कि इज स्टिल वर्किंग एंड उनकी ऑनेस्टी, बहुत Okay. ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं। अभी भी मेरे पापा सुबह 4 बजे उठ के अपने जो भी अकाउंट्स का काम है, सुबह उठ के वो अपना निपटाते हैं, फिर घर की सब्जियां लाते हैं, वो चॉप करते हैं, वो खुद से, उनको कुकिंग का बहुत शौक है, Okay. खाना बनाते हैं, Okay. फिर अपने काम पे जाते हैं, आते वो और अपनी लाइफ को उसी तरह से वो बहुत एंजॉय करते हैं। So I दूसरी see. मुझे मेरी हाँ ये दूसरी मेरी मम्मी है, तो उन्होंने मतलब लाइफ में हमारी पिलर्स है, स्ट्रेंथ है। 1 मिनट को पॉज ले। एक्चुअली वो कोई आया तो Okay, okay. ठीक है। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स में बात करूँ अपनी मम्मी की, तो मतलब शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। एनीवे शी इज, आ जाओ, तुम मिल ही लो आज। ये है जो बार बार आ रहा है। Oh, hi. Your son? 2 बार इंटरप्ट करके गया है। Yes. आपका बेटा? मम्मा यहाँ क्या कर रही है? सुला के मैं उसे आई थी। अब खड़ा होकर सोचेगा मम्मा ऐसा क्या कर रही है कि मुझे एंट्री नहीं, मैं अभी डोर क्लोज कर देती हूँ। हाँ चलो। ये थोड़ा सा चिपकू है बेटा, बेटी एकदम इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में खेलती रहती है, वो Okay. मेरे पीछे पीछे नहीं आती है। Okay. ये पूरे टाइम उसको चाहिए मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो वही चलते चलते आ गया, किधर गई हमारी माता जी। हाँ, टॉकिंग अबाउट माई मदर, मैं बोलूँ तो शी इज वेरी डिफरेंट। जैसे मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे ना अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मतलब अवेयर करना सिखाया कि अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करो, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ बोल रहा है ना, तो तुम वहीं पे उसको आंसर बैक करो, ताकि वो उस एरिया में तुम्हारा एक जो है उसमें ना एंटर करे। तो वो एक चीज मैंने अपनी मदर से बहुत अच्छी सीखी, जिसने वो खुद में बहुत स्ट्रांग वुमेन है और मेरे अंदर भी ये चीज इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो इस वजह से भी ना एक होता है कि सोसाइटी में जो कहते हैं कि फीमेल्स को लेके कि बहुत प्रेशर में रहती, मैं तो नहीं। Okay. मुझे पता है कि मुझे अपने लिए कब स्टैंड लेना, आई नो हाउ टू हैंडल। So I see the reflections of your parents' traits in you as well. Strong, independent and decisive. Yes, honesty from my father I incorporated कि काम करो डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से, ऑनेस्टी एंड दिस पार्ट की बी स्ट्रॉन्ग
और फेलियर जैसा चीज अपने डिक्शनरी में मत रखो. जो भी हो, कीप लुकिंग फॉरवर्ड. एंड दिस इज द टैगलाइन ऑल्सो ऑफ माई लाइफ कि कीप लुकिंग फॉरवर्ड. कुछ भी हो, अब बस आगे बढ़ो. लगेगा कि ये चीज नहीं हो रही है, लेकिन करते रहो, वो चीज हो जाएगा. अकॉम्प्लिश कर लोगे, खत्म हो जाएगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये चीज. तो लुकिंग फॉरवर्ड पे ही, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ लुकिंग फॉरवर्ड टू? व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशंस नाउ? हाँ, मेरे फ्यूचर एस्पिरेशन में अब मैं अपनी लाइफ की जिस स्टेज पे हूँ, जैसे लोग कहते हैं हमेशा किसी भी फेरी टेल के लास्ट में होता है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली जो स्टोरी होती है. तो अब एक कंडीशन आती है कि अब यहाँ से मेरी जर्नी एज ए पेरेंट स्टार्ट हो चुकी है. मेरे किड्स हैं, तो मैं अब लाइफ में देख रही हूँ चीज़ों को बहुत सीरियसली कि मैं ऐसा क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकिंग करें अपनी लाइफ में. करेक्ट. डिसीजन लेने के लिए वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे. सही और गलत की पहचान वो खुद कर पाए. मुझे उनको इतना लायक बना देना है कि वो खुद से डिसाइड कर पाए ये सही है, ये गलत है. मतलब मैंने वैसे कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखती कि मैं उनको कहूँ कि तुम IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. तुम अपने लाइफ की डिसीजन लेने लायक बन जाओ बस. तो मैं अपने लाइफ में अभी बच्चों को लेके ही जो मेरी प्लानिंग चलती है, और अपनी वर्क लाइफ में कि मैं अपना बेस्ट देती रहूं, अपना बेस्ट करूं, और जिस फील्ड में उसमें अच्छा करूं. बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपने संदेश दिया है कि जो करना है दिल से जब पुकार आती है बस उसकी सुनो, फिर दिल और जिंदगी अपने आप जहाँ चाहिए वहां पहुंच जाती है. Yes. बहुत ही प्यारा संदेश दिया. बहुत अच्छा लगा गरिमा जी आपसे बात करके. बस एक जाते जाते आपकी तरफ से मिस्टिक कॉल स्टूडियोज और हमारी डायरेक्टर नेहा मैम के लिए कुछ चंद शब्द आपकी तरफ से हम सुनना चाहेंगे. मैं बहुत थैंकफुल हूँ नेहा के लिए, अजिंक्य आपके लिए, क्योंकि अभी जिस तरह से सोशल मीडिया है ना, हर लोग दिखना चाहता है, हर लोग बोलना चाहता है. आजकल सुनने वाले लोग कम हो चुके हैं. बहुत सही. तो एक तो इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है ये, जिसमें आप एक सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं. और मुझे इस चीज़ के लिए चुना. मुझे नेहा ने जब ये बात कही कि मैम हम आपकी लाइफ जर्नी सुनना चाहते हैं, तो आई फेल्ट कि अच्छा कुछ तो मैंने लाइफ में अचीव किया होगा. श्योर यू डिड. तो अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और आगे मेरी भी बेस्ट विशेस है आपके लिए, नेहा के लिए, पूरी मिस्टिक कॉर्ड्स की टीम के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे. Thank you very much, ma'am. And we also wish you all the best for your future endeavors, for the well-being of you and your family. And that wraps up our insightful conversation between Garima and Ajinkya. If you want to stay updated on her journey, be sure to follow her on social media. Links are provided in the description. And remember, you can catch this episode and more on Spotify so that you can enjoy these incredible stories on the go. We are always on the lookout for unique and inspiring stories to share. If you or someone you know has a journey that the world needs to hear, reach out to us. You might just be our next guest. Until next time, stay inspired, stay connected, and don't forget to like, subscribe, and share this episode with everyone you know. See you in the next one.